So dear students, another important kind of decisions under financial management is that of investing decisions, that is popularly called investing decisions. इस investing decisions में आपके पास दो चीज़ें हैं students, one is short term investment, the other is long term. Short term में working capital का आता है और long term के लिए हम fixed capital या capital budgeting decisions को use करते हैं. So these factors are basically relating to the capital budgeting decisions which are long term in nature. About them separately we will have another video on this. So right now you just remember the factors affecting investment decision as CRI. ये याद रखना है आपको. CRI में सबसे पहला है कैश फ्लो. अगर कैश फ्लो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जल्दी आए या बाद में आए तो इट डिपेंड्स ऑन दैट सिचुएशन. अगर हम ज़्यादा कैश फ्लो एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन द बिगनिंग, सो अकॉर्डिंगली द इन्वेस्टमेंट विल बी दैट वे. एंड इफ वी आर एक्सपेक्टिंग दैट नो, वी कैन डिले द कैश फ्लोज फ्रॉम द प्रोजेक्ट. So that way we will decide that in which projects we are supposed to park the funds. The second most important factor is ROI, that is return on investments. And as you know student, if returns will be more, definitely the investment will also be more in a particular project. The third and the last one is the investment criteria we are using. Criteria means again the same thing, that what is the horizon of our investment, when do we expect the returns from the investment. Are we expecting a short term investment or a long term? Are we expecting some money back policies or maybe some long term investment policies? So it totally depends on our investment criteria. Just remember one thing, if time period of investment will be more students, the risk factors attached to it will also be more, and if the risks are more, no doubt you will get the higher returns. So these are the proportionalities for the various factors attached to the investment criteria, and just remember the investment decisions as CRI. So dear students, now we are discussing the last factor amongst financial decisions, that is dividend decisions. Now and these factors are dependent on these 11 points. So 11 points can be remembered as, आप आजकल देखते हैं बच्चों की सारे आंसर्स बच्चे कहाँ से निकाल रहे हैं, lakhs of answers from GPT. So it is this way you can remember all these 11 points on your tips as lakhs GPT, जहाँ पर L आपका डिनोट करेगा लीगल कॉन्स्ट्रेंट्स को. लीगल कॉन्स्ट्रेंट्स से हमें ये मतलब है कि एनी कंपनी इज गवर्न्ड बाय द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013, एंड देयरफॉर एनी प्रोविजंस बाय दैट एक्ट हैव टू बी अबाइडेड बाय द कंपनी. सो इफ द कंपनी gets restricted by the provisions of the act, it cannot issue enough dividends. Second is A, regarding amount of earnings. We have to ensure जितनी हमारी earnings है हम उसी हिसाब से dividends बांटेंगे. अगर earnings हमारी ज़्यादा होती है तो dividends भी हम ज़्यादा दे पाएंगे. बट हमें ये भी देखना है कि ये अर्निंग्स कितनी स्टेबल है. स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, कि आज हमारी अर्निंग ज़्यादा है बट कल अगर नहीं है तो हम अगर ज़्यादा डिविडेंड बांट देंगे तो शेयर होल्डर्स के एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएंगे. सो देयरफॉर वी हैव टू सी दैट इफ द अर्निंग्स आर स्टेबल इनफ देन ओनली वी कैन इशू मोर एंड मोर डिविडेंड्स. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू दिस इज ऑल्सो स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड्स, कि आप डिविडेंड्स को भी स्टेबल रखना है, ग्रेजुअली इसको इंक्रीज करना है. नहीं तो आप सडन इंक्रीज अगर करते हैं डिविडेंड के स्ट्रक्चर पे, जैसे 2 रुपये दे रहे थे और अभी आप अचानक से 10 रुपये देंगे तो शेयर होल्डर्स की डिमांड और एक्सपेक्टेशंस एकदम से हाई हो जाएगी. एंड नेक्स्ट ईयर इफ यू गिव देम 5 रुपीज दे विल नॉट बी इन अ पोजीशन टू एक्सेप्ट इट. सो देयरफॉर वी हैव टू शो अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन द डिविडेंड्स दे आर receiving from the company. Another important factor student is the cash flow. अगर हमारा कैश फ्लो पोजीशन तगड़ा है, अच्छा है, आता जाता रहता है हमारे पास कैश, तो हमारे पास लिक्विडिटी क्रंच नहीं है, तो हम डिविडेंड्स को इजीली डिस्ट्रीब्यूट करने के एबल हैं. बट इफ़ वी आर रनिंग अंडर द क्रैश फाइनेंशियल क्रंच ऑफ द कैश पोजीशन देन वी कैन नॉट इशू डिविडेंड्स, क्योंकि आपने एक बार अगर डिविडेंड अनाउंस कर दिया, स्पेशली इंटरिम डिविडेंड इन पर्टिकुलर, तो आपको उसको इमीडिएटली पेमेंट करना होता है. कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट्स आर अनदर फैक्टर स्टूडेंट, जहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि इफ़ द कंपनी इज बाउंड बाय सम कॉन्ट्रैक्ट, तो उनको कॉन्ट्रैक्ट्स को बाउंड देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए उनको डिविडेंड्स अनाउंस करने हैं. अगर बहुत ज़्यादा उनके फिक्स्ड ऑब्लिगेशंस हैं, जैसे डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट देना है, तो वहाँ पर कंपनी बाउंड हो जाती है दैट दे कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट और एप्रोप्रिएट मोस्ट ऑफ देयर प्रॉफिट्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स, सो एज टू मीट देयर फिक्स्ड ऑब्लिगेशंस फर्स्ट इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट टू द डिबेंचर होल्डर्स. दिस पॉइंट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स. कैपिटल मार्केट का एक्सेस कितना है. एक बड़ी कंपनी, बिग कंपनी ऑलवेज हैव अ बिगर एक्सेस टू द कैपिटल मार्केट. दे कैन ईजिली रेज फंड्स फ्रॉम द इक्विटी सोर्स, सो देयरफॉर वहाँ पर उनके डिविडेंड्स डिस्ट्रीब्यूशन भी ज़्यादा होंगे क्योंकि उनका एक्सेस टू द कैपिटल मार्केट ज़्यादा है. बट एक छोटी कंपनी इतना एक्सेसिबल नहीं होती है स्टॉक मार्केट के, तो वो प्रेफर करती है रिटेन अर्निंग से अपना गुजारा करने का. नेक्स्ट इन लाइन इज स्टॉक मार्केट रिएक्शंस आर ऑल्सो टू बी सीन स्टूडेंट्स, क्योंकि रिएक्शंस कैसा है, अगर हम डिविडेंड ज़्यादा देते हैं तो डेफिनेटली हमारी पिक्चर
इन द शेयर मार्केट अच्छे पोजीशन में आ जाएगी, हमारा कंपनी का नाम होगा क्योंकि ये कंपनी अच्छे डिविडेंड्स बांट रही है। तो कंपनी के जो मैनेजमेंट टीम है वो ये भी फैक्टर को ध्यान में रखते हुए डिविडेंड्स अनाउंस करेंगे दैट हाउ व्हाट काइंड ऑफ एन इम्पैक्ट डज इट हैव ऑन द इमेज ऑफ द कंपनी इन द मार्केट। नेक्स्ट इन लाइन इज द ग्रोथ फैक्टर। अगर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज कंपनी के पास ज़्यादा है देन डेफिनेटली विल गो फॉर लेसर डिस्ट्रीब्यूशन इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स, क्योंकि उस टाइम पे कंपनी ये कोशिश करेगी कि अपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट्स को रिटेन करके फ्रूटफुल अपॉर्चुनिटीज़ जो उनको सामने दिख रही हैं ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ में फंड्स को पार्क करना, बट विथ टेकिंग शेयर होल्डर्स इन कॉन्फिडेंस, क्योंकि शेयर होल्डर्स की प्रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। शेयर होल्डर्स अगर चाह रहे हैं कि इमीडिएट डिविडेंड्स उन्हें मिल जाए तो वी हैव टू गिव देम मोर डिविडेंड्स, बट इफ इन केस दे आर रेडी टू वेट दैट येस दे विल बी एक्सपेक्टिंग मोर डिविडेंड्स इन फ्यूचर इफ द कंपनी हैज़ ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, then they can park their funds now and later on they will give more dividends to the shareholders. If shareholders are happy with this, then there can be some delays in distribution of dividends to the shareholders. So shareholders preference is one of the important factor, as shareholder is considered as a backbone of the company who is also the financer or investor to the company. The tax structure has an important impact students. आपको पता है कि DDT या CDT corporate dividend taxes और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर इनके स्ट्रक्चर्स रेट ऑफ टैक्स इज हाई देन डेफिनेटली द डिविडेंड्स विल नॉट बी प्रेफरेबल, not be distributed by the company because they will have to pay more taxes. So in that case the company will refrain from paying dividends to the shareholders. So I hope the points are very clear. Factors affecting dividend decision, just remember as lakhs on GPT, lakhs of answers on GPT.